نصر من اللہ و فتح قریب، یقیناً یہ اس آیات کا جو مطلب ہے وہ اب تو بھارتیوں کو بلکہ پورے ہندوستان کو، میں کہتا ہوں نریندر مودی کو بھی اب اس آیت کا جو مطلب ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا کل رات جو جذبہ دیکھا ہے، اور کل رات سے ہی جیسے بھارت نے ایک چھوٹی سی غلطی کی پہلے ہی انہیں بتا دیا گیا تھا کہ بھائی ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں نہ چھیڑو، ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمیں نہ چھیڑو۔ جب ہم نے چھیڑ دیا پھر ہم شروع ہو گئے، اور جب ہم شروع ہو گئے تو پھر پاکستانیوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کل رات بھارت نے غلطی کیا ہے، پاکستان کی نور خان ایئر بیس اور دیگر مقامات پر جو اس نے ایک بار پھر سے حملہ کیا۔ اس حملے کے فوراً بعد جو صورتحال کریٹ ہوئے پاکستان کی جانب سے ایک ایسا آپریشن شروع کیا گیا، اور اس آپریشن کے بعد بھارت میں کیا کہتے ہیں کہ جی اندھیرا چھا گیا، باہر تو جو ہے وہ نیندیں ان کی اڑ گئی ہیں۔ اس وقت سینئر صحافی حاشر خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، حاشر صاحب جو ہے وہ اسکرپٹ پہ اسکرپٹ لکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے کہاں پہ جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں، کہاں پہ جو اس کے منہ کی کھانی پڑی، اور بھارتی میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن خٹک صاحب راج جو پاکستانیوں نے دیا ہے نا، JF-17 جب دہلی کے اوپر سے گزرنے سب کی نیندیں اڑ کے رکھ دیں۔ خٹک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کل رات کیا ہوا اور کیسے سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر آپ کو جو ہے وہ لاتوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان کافی عرصے سے یہ بات کر رہا تھا کہ امن کی جو خواہش ہے اس کو کمزوری نہ سمجھیں، ہمارے صبر کو جو ہے وہ للکارے مت، کیونکہ اگر ہم نے جواب دیا تو پھر شاید جو ہے وہ بھارت کے مندروں میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی۔ لیکن مودی سرکار جو ہے وہ اپنے جو ناپاک عزائم تھے ان سے باز نہیں آیا، مسلسل پاکستان کے خلاف جارحیت کرتی رہی مودی سرکار، اور بھارتی فوج جو ہے وہ مسلسل ڈرونز کے ذریعے پاکستان کی سالمیت کو جو ہے وہ چیلنج کرتی رہی۔ لیکن گزشتہ رات جو ہے وہ بھارت کی جانب سے 4 سے 5 برہموس میزائل پاکستان کی جانب فائر کیے گئے، جس میں سے 3 میزائل جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ بھارت کے اپنے شہر کے اندر امرتسر کے اندر گرے، جبکہ ایک جو برہموس میزائل ہے وہ راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس کے قریب جو ہے وہ اس کو ہٹ کیا گیا، اور وہ بھی اپنے منزل پر پہنچنے میں ناکام رہا۔ اس کے علاوہ بھارت نے مختلف جو ایئر بیسز ہیں، جس میں پشاور ہے، لاہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ایئر بیسز ہیں ان کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی، جن کو پہلے تو پاکستان نے ناکام بنایا، اور اس کے بعد جب پاکستان نے پہلے جیسے کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے اپنے وقت، اپنے مقررہ وقت اور تاریخ پر، اپنے تمام طاقت کے ساتھ، پھر پاکستان نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پاکستان کی افواج نے فتح میزائل، الفتح میزائل، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کے لڑاکا طیارے جس میں J-10 شامل ہیں، اس نے اس آپریشن کو لیڈ کیا۔ JF-17 تھنڈر، F-16 جو ہے وہ اڑائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھارت میں ایک صفحے ماتم بچھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت میں کیا ہوا۔ بھارت کے نہ صرف جو ہے وہ 6 سے 7 جو ایئر بیسز ہیں ان کو تباہ کیا گیا۔ آدم پور کا ایئر بیس جو ہے، اگر میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں تو آدم پور کا ایئر بیس نہ صرف تباہ کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بٹنڈا، سورت گڑھ، مامون، اکنور، جموں، سرسا اور برنالہ کے جو ایئر بیسز ہیں ان کو نہ صرف اٹیک کیا گیا بلکہ جہاں سے گزشتہ رات پاکستان کے اوپر براموس میزائل فائر کیے گئے تھے، بیاس کا جو شہر ہے وہاں پر اس براموس میزائل کے لانچنگ جو ایریا تھا اس کو بھی تباہ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے جو شاہین ہیں انہوں نے مختلف مقامات پر بھارت کے 2 رافیل مزید طیارے جو ہے وہ گرا دیے ہیں۔ تو یہ نہ صرف بھارت بلکہ فرانس کے لیے بھی بری خبر ہے کہ جو پہلے ہی 1-2 رافیل طیارے جو پاکستان نے کچھ دن پہلے گرائے تھے اس کی جو ہے وہ ناکامی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایسے میں 2 مزید طیارے پاکستان نے گرائے۔ تو پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے تمام جو شاہین ہیں جو بھارت پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے وہ بخیر و عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اپنے ایئر بیسز میں واپس لوٹ چکے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ فتح میزائل اور الفتح میزائل کے حملے اب بھی جاری ہیں۔ بالکل خٹک صاحب، بہت ہی زبردست آپ نے یہ بھارتی تھوڑا سا یاد سن لیں، تھوڑا سا ہماری بھی ہم صاحب ہماری بھی بات جو ہے وہ سن لیں۔ سب سے مزے کی بات یہ خٹک صاحب، جیسے ہی پہلگام واقعہ ہوا تو بھارتی میڈیا نے بڑی جھوٹی خبریں جو ہے پھیلی، لیکن کل جو واقعہ ہوا اب بھارتی میڈیا جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اتنے علاقوں پر جو ہے وہ میزائل گرے ہیں، اتنے علاقے جو ہیں وہ پاکستانی ایئر فورس نے، پاکستان نے جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ پہلے آپ لوگ یہ بات مان لیتے۔
देखिए, भारत ने जितने भी अटैक किए, भारत के पास एक का भी सबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने, जैसे कि हमारे DGISPR ने बरमेला कई बार कहा कि जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो उसकी घन गरज दुनिया भर में सुनी जाएगी, और ऐसी घन गरज के साथ पाकिस्तान ने आज रिस्पॉन्ड किया है कि दुनिया भर में ना सिर्फ सुनाई दी गई है बल्कि दुनिया भी पाकिस्तान की इस घन गरज की मुतरफ हुई है। पाकिस्तान ने अपने हर एक हमले की वीडियो सबूत दुनिया के सामने फौरन जो है वो पेश कर दिया है, चाहे वो अखनूर हो, चाहे वो बटिंडा हो, चाहे वो श्रीनगर का एयरबेस हो या पठानकोट का एयरबेस हो, हर तरफ, या आदमपुर का एयर डिफेंस सिस्टम हो, हर तरफ जहां पाकिस्तान के शाहीनों ने झंडे गाड़े हैं, उन तमाम झंडों का, उन तमाम फतूहात का पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद है। और जहां भारतीय मीडिया जो है वो कल तक भड़के मारता था, भारतीय तजियाकार भड़के मारते थे, आज वो भीगी बिल्ली बने हुए हैं, आज वो पाकिस्तान की कामयाबी का इतराफ करते हैं। और पाकिस्तान ने इसीलिए कहा था कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, और अगर सताया हुआ बंदा जो है वो जब अपनी आपे पे आ जाता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है। हमने पहले भी कहा था कि भाई हम अमन चाहते हैं, हम प्यार का जो पैगाम है वो देना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा है कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब खटक साहब, अब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बढ़ गया, तो अब सिंदूर जब बढ़ जाता तो फिर खटक साहब क्या होता है? सिंदूर तो बिल्कुल आपने कहा कि पाकिस्तान ने उसको मुकम्मल तौर पर वार के रख दिया है। और मैं यहां पर आपको एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान की जानिब से जो मिसाइल फायर किए गए थे, उन मिसाइल्स को, उन लॉन्चिंग पैड्स को उन शहीद बच्चों के नाम पे रखा गया, उन शहीद बच्चों को खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश किया गया जो कुछ दिन पहले भारत के मजमूम हमले में शहीद हुए थे। उन बच्चों के नाम पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को रखा है। और अगर आप ऑपरेशन का नाम देखें, बनियान अल मरसूस, जिसका मतलब क्या है? सीसा पलाई हुई दीवार। इसलिए कहते हैं इस्लाम में कि पहले आप अमन की ख्वाहिश करें, लेकिन अगर आप पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर वही बात आ जाती है कि जब जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। बिल्कुल पाकिस्तान ने आज कहा है कि जब हम पे जंग लाजिम कर दी गई है तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे सामने कौन खड़ा है, हम उसको नस्तो नाबूद कर देंगे। बिल्कुल जी, ऐसी बात है, ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त क्रिएट हो चुकी है। और अब पाकिस्तान जो, अब हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाले। अब जो कुछ भी कर ले, आप लोगों ने हमला किया, रात के अंधेरे में हमला किया, मासूम बच्चे शहीद हुए, हमारी जो मसाजिद है, इबादत गए हैं, उनको आप लोगों ने शहीद किया। आप लोगों को एक मंदिर तबाह हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हम ये छोटी हरकतें जो है ये नहीं करते। हम लोग एहतराम करते हैं, मजहब जो भी मुसलमान जो है, पाकिस्तान जो है वो एहतराम करता है इस चीज का। लेकिन अब हमने क्या शुरू कर दिया? इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। ये ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है। अब आप इसराइल से तैयारे लें, अब आप फ्रांस से लें, लेकिन कहते हैं कि जो गाय का पेशाब पीने वाले होते हैं उनको चाहे अब दुनिया की जबरदस्त टेक्नोलॉजी दी, तो जब उनके अंदर गैरत ही नहीं होगी वो जहाज को जो है वो क्या चलाएंगे? तो वही जो तैयारे थे, वही जो मिसाइल थे, अपने इलाके के ऊपर उन्होंने जो वो गिरा दी हैं, क्योंकि उनको चक्कर आ गए थे। ज़ाहिर है गाय खराब थी, उसका पेशाब पिया तो वो भी बीमार हो गए, थोड़ा बहुत दिमाग पे चढ़ गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभिनंदन आया था, चाय पिलाकर हमने उसे वापस भेज दिया। सुबह वो एक और खतून बीबी आई है, नाम तो हम नहीं लेना चाहते, हम पाकिस्तानी हैं, आपकी बेटी है, हमारी भी बहन है, हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं खवातीन। आपकी तरफ बगैरत कमीने तो हम नहीं है ना बुद्धि, हम आपकी तरह तो बगैरत नहीं है कि हम लोग एहतराम नहीं करते खवातीन का। खटक साहब अब उसको क्या करेंगे? सुबह कैप्चर किया पाकिस्तान ने। देखिए, इस हवाले से बहुत सारी मुतज़ाद इतलात हैं। कुछ इतलात ऐसी है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं और मकामी जो लोग थे कोटली के, उन्होंने उनको कैप्चर किया है। लेकिन कुछ इतलात, सुबह वो एक और खतून बीबी आई है, नाम तो हम नहीं लेना चाहते, हम पाकिस्तानी हैं, आपकी बेटी है, हमारी भी बहन है, हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं खवातीन। आपकी तरफ बगैरत कमीने तो हम नहीं है ना बुद्धि, हम आपकी तरह तो बगैरत नहीं है कि हम लोग एहतराम नहीं करते खवातीन का। खटक साहब अब उसको क्या करेंगे? सुबह कैप्चर किया पाकिस्तान ने। देखिए, इस हवाले से बहुत सारी मुतज़ाद इतलात हैं। कुछ इतलात ऐसी है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं और मकामी जो लोग थे कोटली के, उन्होंने उनको कैप्चर किया है। लेकिन कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि वो जो कोटली के जंगल हैं उसमें कहीं जो है वो फरार हो चुकी हैं, जिनकी तलाश जारी है। लेकिन नहीं जा रही है, ये देखें, सिंदूर लगा रहे हैं, ये देखें, लेकिन जो है वो हम एक
बात बता दें कि जैसे आपने कहा कि हम आपकी तरह नहीं हैं, आपकी पायलट आई है, आपकी जो है वो यस हम उसको कैश जरूर करेंगे, पाकिस्तान उसको वर्ल्ड ट्रॉफी के तौर पर जरूर पेश करेगा, लेकिन खवातीन की इज्जत जो है वो हमारे माशरे में है, हम उनको इज्जत और एहतराम के साथ जरूर रखेंगे। आपकी तरह नहीं है कि भड़के मारेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि इस बार अभिनंदन की तरह जो है वो उन्हें चाय पिलाई जाएगी। इस बार ना कोई चाय है, ना कोई केक रस है, ना कोई केक पीस है, इस बार सिर्फ दमादम मस्त कलंदर है, और वो दमादम मस्त कलंदर जो है वो भारत के बहुत सारे शहरों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, और पहला नंबर जो है वो हमारा है। अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी, फेशियल वगैरह करवाया था, लेकिन चूंकि ये खातून है हम भी एहतराम के साथ भेजेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, पाकिस्तानी जब घरों से निकलते हैं सर पे कफन बांध के निकलते हैं। हम ये नहीं, हमारे जो एयरफोर्स के जो पायलट हैं ये देखें, ये दस्तखत कर रहे हैं किस चीज के ऊपर कि भाईजान हम लोगों ने जब यहां से निकल रहे हैं तो हम लोग वापस नहीं आएंगे, तबाह करके आएंगे। ये नहीं है कि उधर जाकर हम लोग जहाज तबाह हुआ तो खुद जो है वो निकल गए और खुद हवाले कर नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब खटक साहब, इसका क्या मुस्तकबिल? अब भारतीय को सबक सीखना चाहिए, या फिर अगर दोबारा उन्होंने हमें तंग किया तो फिर क्या करेंगे? देखिए, आज नेशनल जो अथॉरिटी है उसका इजलास बुलाया गया है, और नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाया गया, और ये ऐसा इजलास है जिसकी लोकेशन और वक्त किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि इसमें आपकी टॉप की जो मिलिट्री लीडरशिप है और इसके साथ टॉप की जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फैसला करते, वो वहाँ पर बैठती है। और वो ये जो मीटिंग है, इस हवाले से मैं लोगों को बताता चलूँ कि जब नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई जाती है तो इसका मतलब है कि मुल्क में बहुत जो है वो हंगामी सूरत हाल है, और हालात जो है वो जंग के, वो एटमी जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस इजलास में एटमी जंग से रिलेटेड, एटमी मामलात से रिलेटेड जो चीजें हैं वो फैसले किए जाते हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने अपने तमाम जो सुपरसोनिक का सिस्टम है, सुपरसोनिक मिसाइल है, वो तमाम के तमाम रेडी कर दिए गए हैं। और जैसे कि अब से कुछ देर पहले जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आर्मी चीफ से रब्ता किया, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से रब्ता किया, इसके अलावा चीनी क़यादत, चीनी हुकूमत ने भी रब्ता किया, और सऊदीज़ भी मुसलसल राब्ते में हैं। तो अब कोशिश की जा रही है कि इंडिया को पैगाम दिया जाए कि अगर आपकी अकल टिकाने नहीं आई है और आपने कुछ और करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की तरफ से जो अभी रिस्पांस आया है उसके बाद जो रिस्पांस होगा वो इससे कहीं ज्यादा होगा, और वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है और ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग बस कर जाएं, भारत के ऊपर जो है वो तरस खाएं, मोदी के ऊपर जो है वो तरस खाएं, क्योंकि मोदी साहब जो है वो कल से गायब हैं बिल्कुल भी। और ये एंड पे आपको एक बड़ी खबर बताऊं कि जो भारत के जो आर्मी चीफ हैं, जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने मोदी को कह दिया कि अब हमसे मजीद जो है वो कुछ नहीं हो सकता, हमारे साथ जो है वो अपना राब्ता मुनक़ता करें, हम अपने फौजी जो है मरवाने के लिए जो है वो नहीं भेजेंगे। और इस सूरत हाल में उन आपस में भी जो हालात हैं वो खराब हो चुके हैं। इस वक्त इंडिया में जो सिख कम्युनिटी के जो सिख ब्रदर है वो भी इस वक्त एहतजाज में मोदी के खिलाफ कि जी आप गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल पीछे हट रहे हैं, आपकी वजह से हमारे अपने लोग जो है मर रहे हैं। मजीद अपडेट आपको देते रहेंगे। भारतीय दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।